Now we explain chapter number 4, T.S. Grewal book, when accounting concept of profit and loss, general reserve are given, how we calculate the concept of this question. Page number 4.40, question number 10. In the question it is given XY are partner in the firm sharing profit 3:2. With effect of 1st April 2020, they decided to share future profit equally. On the date, there was a credit balance of profit and loss account 1,50,000 rupees. Credit balance means profit of the year. We pass out the following journal entry. Profit and loss account dear to X capital to Y capital, being profit divided into the partner in their old ratio, which are given in the question 3:2, and you will divide 1,50,000 rupees in this ratio, so it will become 90,000 rupees and 60,000 rupees. This is the first question. कि whenever profit is given, whenever goodwill is given, whenever loss is given, whenever any general reserve is given, it will be divided into the partner in their old ratio, not new ratio. यहाँ हमारा नया रेशो का कोई कंसेप्ट नहीं है. जो हमारा ओल्ड रेशो दे रखा है, हम सारे प्रॉफिट, कोई भी रिजर्व अगर बैलेंस शीट में दे रखा है, उसको हम हमेशा ओल्ड रेशो में ही डिवाइड करेंगे. यहाँ सेक्रीफाइस का और नया रेशो का कुछ भी नहीं किया जाएगा. इज इट क्लियर? क्योंकि जो भी चीज़ पुरानी बैलेंस शीट में दी होती है वो हमेशा ओल्ड रेशो में ही डिवाइड की जाती है. फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11. इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन डेबिट बैलेंस ऑफ 1 लाख रुपीज़. डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस हो गया. मैंने भी आपको प्रॉफिट की एंट्री कराई थी और आपको मैं लॉस की एंट्री कराता हूँ. तो सिंपल आपकी है, इसमें ए और बी पार्टनर हैं और इनका रेशो कितना था पहले 4:1. तो पास आउट एंट्री ए कैपिटल अकाउंट दिया, बीस कैपिटल अकाउंट दिया, टू प्रॉफिट एंड लॉस being loss divided into the partner in their old ratio. Amount of the loss is 1 lakh rupees. It will be divided into 4:1. It will be 80,000 rupees and 20,000 rupees. This is question number 11 and question number 12. A, B, C, who are apparently sharing profit ratio 5:3 decided to share future profit in ratio 2:5. Give the necessary general entry to distribution workman compensation reserve 1,20,000 rupees at the time of change in profit sharing ratio. No other information is given. There is no claim against it. यह मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. Whenever in the question workman compensation fund is given, then there is some rules about this concept, workman compensation fund. If any liability is given about this fund, then the balance amount divided into the partners. If nothing given about it, then we assume कि total amount will be divided into the old partner. कहने का मतलब ये है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड जब क्वेश्चन में दिया हो तो अब नीचे सूचनाओं में देखते हैं, एडजस्टमेंट में देखते हैं कि कुछ कहा तो नहीं गया है. अगर नीचे सूचनाओं में कहा गया है कि इस फंड की इतनी लायबिलिटीज़ है, तो जितने फंड की लायबिलिटीज़ है वो अमाउंट हम हटा देते हैं और जो बैलेंस बचता है वो हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं. कहा गया है कि इसकी लायबिलिटीज़ 50,000 रुपये है और ऊपर कमीशन फंड 70,000 रुपये का है, तो 20,000 रुपये हम अपने पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे. कुछ नहीं कहा जाएगा कि लायबिलिटीज़ कितनी है, तो पूरा 70,000 रुपीज़ पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा.
कहा जाएगा 90,000 रुपीज़ की लाइबिलिटीज है और ऊपर 70,000 रुपीज़ दे रखा है, तो 20,000 रुपये हम एक्स्ट्रा फंड और बनाएंगे और कोई भी पैसा पार्टनर्स में डिवाइड नहीं किया जाएगा। तो पहले मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में बताता हूँ कि वो क्या चीज़ है। पहले आप इसको इतना पॉइंट देख लें, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 11 कि इसमें फर्स्ट कंडीशन में आपको लॉस दिया और प्रॉफिट दिया था, तो आपने एंट्री पास आउट की, प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया to X capital to Y capital and the profit amount 1,50,000 rupees will be divided into the old partner in their old ratio, not new ratio. Is that clear? The second condition, loss is given, we divide the loss into the old partner in their old ratio, but entity will be different. A capital account DR, B capital account DR to profit and loss. Is that clear? Now we explain about the workman compensation fund. वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जब भी कभी आपके वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्वेश्चन में दिया हो तब इसकी 3 कंडीशंस हैं और तीनों कंडीशन को आप किस तरह फॉलो करेंगे। फर्स्ट, नो लायबिलिटीज गिवन, some liabilities given and more liabilities given। और आप कहेंगे सर ये कैसे, मान लें क्या लायबिलिटी होगी आपकी, तो मैं आपको बताता हूँ कि मान लिया वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपका 70,000 रुपीज़ का था और नो लायबिलिटीज गिवन, यानी आपको कोई भी लायबिलिटीज़ नहीं दे रखी है, नील है, कोई लायबिलिटीज़ नहीं है, तो आपकी एंट्री क्या होगी। अगर लायबिलिटीज़ आपके यहाँ 50,000 रुपये की है, सम लायबिलिटी है, यानी कि लायबिलिटीज़ कितनी आपकी है, 50,000 रुपये की है, तब कंडीशन क्या होगी। और अगर आपकी लायबिलिटीज़ 90,000 रुपीज़ की है, तब आप क्या करेंगे। इज इट क्लियर। अगर आपकी लायबिलिटीज़ दी नहीं है और कहा है कि आपका फ़ंड 70,000 रुपये का है, तो ये पूरा अमाउंट जो आपका दिया हुआ है 70,000 रुपीज़ आप ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। इस कंडीशन में क्या होगा कि टोटल अमाउंट ऑफ फंड विल बी डिवाइडेड इनटू ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, यानी कि यहाँ पे पूरा आप 70,000 रुपये डिवाइड कर देंगे। आप कितना कर देंगे, आप 70,000 रुपये डिवाइड कर देंगे। अब दूसरा कंडीशन में क्या है आपका कि आपका 50,000 रुपीज़ का दे रखा है, तो 70,000 माइनस 50,000 इट मीन्स 20,000 विल बी डिवाइडेड इनटू द पार्टनर, कि 20,000 रुपये आप पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। किस रेशो में, वही अपने ओल्ड रेशो में। सब कुछ करना आपको ओल्ड रेशो में ही है। दूसरी बात, अगर आपका फंड 70,000 रुपीज़ का था, आपकी लायबिलिटी नीचे एडजस्टमेंट 90,000 रुपीज़ रखी है, तो नो अमाउंट विल बी डिवाइड इनटू द पार्टनर। अगर आपका लायबिलिटी 90,000 रुपये की है, ऊपर फंड 70,000 रुपये दे रखा है, तो कोई भी पैसा आपका पार्टनर्स में डिवाइड नहीं किया जाएगा। पूरा का पूरा आप नेक्स्ट न्यू बैलेंस शीट में 90,000 रुपीज़ का लायबिलिटीज में शो करेंगे, कोई पैसा उसमें आप डिवाइड नहीं करेंगे। तो मैंने 3 कंडीशन बताई। पहले देखिए आप ध्यान से कि मान लीजिए आपका ओल्ड बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड 70,000 रुपये का दिया था और नीचे आपकी लायबिलिटीज में आपसे कुछ नहीं कहा गया कि कोई लायबिलिटीज है भी या नहीं है। अगर आपकी लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो आप इस 70,000 रुपीज़ को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, पूरा 70,000 रुपये। अगर मान लिया आपके नीचे लायबिलिटी दे रखी है 50,000 रुपये की, कि नीचे कहा गया है कि लायबिलिटीज फंड के लिए इस प्रकार की फंड की लायबिलिटी जो है वो 50,000 रुपये है, तो 70 माइनस 50 यानी कि 20,000 रुपये बचेंगे। वो 20,000 रुपये आप ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे।
अगर आपका लाइबिलिटी 90,000 रुपीज़ की आती है और ऊपर आपका 70,000 रुपीज़ का था, तो आप कोई भी पैसा पार्टनर्स में डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि 20,000 रुपये का एक्स्ट्रा लाइबिलिटी आपको क्रिएट की जाएगी, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में या P&L एप्लीकेशन अकाउंट में या जहाँ से भी कहा जाएगा वहाँ से एडजस्ट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको शो करेंगे। तो पहले आप ये ध्यान से देख लीजिए एक बार, फिर बताइए।